140 કરોડ ભારતીયો કોઈપણ જ્ઞાતિ જાતિ ધર્મના ભેદભાવ સિવાય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈને સહયોગ આપી રહ્યા છે. એ દેશની એકતા અને અખંડતા બતાવે છે. આજના આવા મોટા હુમલા બદલ આખો દેશ માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈને અભિનંદન આપી રહ્યો છે. તડપાઈને મારવું એ પણ ભારત સરકારે એક નીતિ અખત્યાર કરી છે. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સિંધુ કરાર, આપણી સિંધુ નદી જે કાશ્મીરમાંથી હિમાલયમાંથી નીકળી અને પાકિસ્તાનમાં જુદી જુદી નદીઓના મારફતે જાય છે. એના પાણીથી પાકિસ્તાનની ખેતી, પાકિસ્તાનના લોકોને પીવાનું પાણી એ બધું ભારતના નદીઓના પાણીથી મળે છે. ત્યારે એને સબક શીખવવા માટે આપણી સરકારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ જે નિર્ણય કર્યો, સિંધુ કરાર સ્થગિત કરી દીધો છે. અને આપણે બધાએ જાણ્યું કે 2 દિવસ પહેલાં જે પાણી જુદી જુદી નદીઓ મારફતે પાકિસ્તાનમાં જાય છે એ આપણા બંધો દ્વારા વહેવાનું બંધ કર્યું છે. પાકિસ્તાનની જે નદીઓમાં 10-10 ફૂટ પાણી ભરાયેલું રહેતું હતું એ નદીઓના તળિયા દેખાવા માંડ્યા છે. અને અઠવાડિયા 10 દિવસમાં પાકિસ્તાનના 3 થી 4 કરોડ નાગરિકો પાણી વગર તડવડે એમની ખેતીને મોટું નુકસાન થાય અને એમના ઉદ્યોગોને નુકસાન થાય અને આર્થિક રીતે પાકિસ્તાન પાયમાલ થાય એ માટેનું પણ જે ત્રિપાખીય વ્યૂહ ભારત સરકારે કર્યો છે એ આપણે બધા જોઈએ છીએ. એક બાજુ પાકિસ્તાનને આર્થિક રીતે પાયમાલ કરવું, બીજી બાજુ આતંકવાદી અડ્ડાઓ પર આવા મોટા મોટા હુમલા કરી અને સારામાં સારા આધુનિક મિસાઇલ્સ અને આધુનિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરી અને પાકિસ્તાનના આતંકવાદી અડ્ડાઓને બિલકુલ નેસ્ત નાબૂદ કરવા અને બીજી બાજુ દુનિયામાં રાષ્ટ્રસંઘથી માંડીને બધી જ જગ્યાએ પાકિસ્તાનને વિખૂટું પાડી દેવું. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન અને દુનિયાભરના દરેક દેશના નેતાઓએ, વડાપ્રધાનોએ બધાએ ભારતને ટેકો જાહેર કર્યો છે. અને ભારત આતંકવાદ સામે જ્યાં લડત લડી રહી છે અને આખી દુનિયા જ્યારે ટેકો કરી રહી છે ત્યારે આ રીતે આખી દુનિયામાં વિદેશ નીતિમાં પણ આપણો દેશ સફળતાપૂર્વક આગળ વધી અને પાકિસ્તાનને હર હંમેશ કાયમ માટે નેસ્ત નાબૂદ કરવું, આતંકવાદી અડ્ડાઓને નેસ્ત નાબૂદ કરવા અને ભારતને કદી કોઈ રીતે આતંકવાદીઓ પરેશાન ન કરી શકે એવો એમને પાઠ ભણાવો એ કામની લશ્કરી રીતે શરૂઆત આપણા વડાપ્રધાનશ્રીએ, આપણા માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ, આપણા સંરક્ષણ મંત્રી માનનીય રાજનાથસિંહે અને આપણા ગૃહમંત્રી માનનીય અમિતભાઈ શાહે આ ત્રણેય નેતાઓએ જે રણનીતિ ઘડી છે, સેનાપતિઓ સાથે મળી અને બીજા અધિકારીઓ સાથે મળીને જે રણનીતિ આગળ વધી રહી છે એમાં આવનારા સમયમાં આપણે જોઈશું કે હજુ મોટી વધારે પાકિસ્તાનને પગારપાટ મળે અને આનાથી પણ વધારે ભયંકર રીતે પાકિસ્તાનને શોષવું પડે, સહન કરવું પડે એવા પગલાં કરોડો ભારતીયોની ઈચ્છા પ્રમાણે આપણા વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ લઈ રહ્યા છે. એને સમગ્ર દેશનો ટેકો છે. भारत माता की जय। पहलगाम आतंकवादी हमले का जवाब देते हुए आज भारत ने, हमारी आर्मी ने जो कार्य करके दिखाया, इससे हर भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा हो गया। और ये एक ऑपरेशन में कई लोग कहते हैं कि एक तीर दो निशान, लेकिन हमारे विश्वविख्यात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने अपनी चाणक्य नीति से एक तीर में अनेक निशान इसमें लिए हैं। देखिए कि एकदम सटीक निशान, जिसमें तीनों आतंकवादी संगठन के जो मदरसा थे, उनके ट्रेनिंग कैंप थे, उसको तबाह कर दिया। दूसरी बात कि ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसके नाम के पीछे भी जिस तरह की दीर्घदृष्टि, जिस तरह का कुनेह दिखाई देता है, सचमुच हमें लगता है, हर एक भारतवासी को लगता है कि ऑपरेशन का नाम जो सिंदूर ऑपरेशन दिया, क्योंकि
आतंकवादियों ने एक हिंदू परंपराओं का अपमान करते हुए उन्होंने महिलाओं का सुहाग उजाड़ा और महिला का सुहाग के प्रतीक सिंदूर का उन्होंने अपमान किया, उनका सिंदूर उजाड़ा। तो इस ऑपरेशन का नाम जो ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, सचमुच काबिल तारीफ है। दूसरी बात कि कुछ दिन के पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने जो कहा था कि हमारी संस्कृति अलग है, हम हिंदू मुस्लिम कभी एक साथ रह सकते नहीं हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन भारत ने उनको भी बड़ा जवाब दिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ उसका जिन्होंने मॉनिटरिंग किया वो दोनों महिला, और वो महिला में एक जिसका नाम है कर्नल सूफिया कुरैशी और एक वायुसेना की विंग कमांडर है व्योमिका। तो ये दोनों नाम पर से हम समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम परिवार की बेटी है, एक हिंदू परिवार की बेटी है, लेकिन ऐसे यहाँ ये सिद्ध किया कि दोनों न हिंदू न मुस्लिम, ये भारत की बेटी है। और महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था। तो ये पूरा ऑपरेशन महिलाओं के द्वारा पार किया गया, और उस हिसाब से मैं कहूँगा कि एक निशान में, एक तीर में अनेक निशान इसको कहा जाता है। आज सारे भारतवर्ष में एक दिवाली जैसा माहौल है। मैं भी आदिवासी क्षेत्र में था, 2 दिन से मेरा भ्रमण आदिवासी क्षेत्र में था, और वहाँ हमारे जो आदिवासी, कई लोग कहते हैं कि आदिवासी जो है वो अलग लैंड मांग रहे हैं, उनको भी नक्सलवादी उकसा रहे हैं, लेकिन वो सारी जगह पर बरसात हुई। आज कई तरह के वैसे तो किसानों को नुकसान हुआ, लेकिन किसी को कोई नुकसान की परवाह नहीं है। सब इतने खुश हैं कि नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया, ये सचमुच एक बेमिसाल है और पाकिस्तान को संदेश भी दे दिया। आए दिन पाकिस्तान धमकी दे रहा था हमारे पास एटम एनर्जी है, एटम बम है, एटम बम है। भारत ने कभी नहीं कहा हमारे पास इतनी शक्ति है, हमारे पास इतना सैन्य है, हमारे पास एटम बम है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि जो खाली है वो ज़्यादा गर्जना करता है, और सिद्ध भी हुआ। तो जिस तरह से कई लोग कहते थे कि इतने दिन हो गए, क्यों कोई बदला नहीं लिया गया, क्यों कोई उस कार्यवाही नहीं की गई, लेकिन सब में धैर्य की आवश्यकता होती है, कुनेह की आवश्यकता होती है, और सब तरह से, क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय भी प्रश्न है, तो सभी का विश्वास जीतना, और उस तरह से सभी तरह से हमारी ये वर्तमान सरकार सफल रही। हमारी इस वर्तमान सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री जो अमित शाह हमारे गुजरात के सपूत हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और हमारी जो सैन्य में जो 2 बेटियों ने ये पूरा काम पार किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आज भारत के हर एक नागरिक का सर गर्व से ऊंचा है। हमारी अंतर से आवाज़ आती है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अत्यंत सराहनीय है। पूरा भारत देश हमारी सेना के साथ है, सारी राजनीतिक पार्टियां भारत सरकार के साथ में हैं। इस विषय में, इस संदर्भ में सब एक होकर के भारत के उत्थान के लिए, भारत की सेना का गौरव और उनका उत्साह वर्धन करने के लिए एकजुट होकर के प्रशंसा कर रहे हैं। वास्तव में होना यह था कि उन आतंकवादियों को जिन्होंने पहलगांव में इस घटना को अंजाम दिया था, भारत सरकार को सौंप देते तो आज यह स्थिति पाकिस्तान में ना होती। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की आर्मी और वहाँ के आतंकवादियों ने, वहाँ की प्रजा ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, न ऐसी सलाह पाकिस्तान सरकार को दी। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है और उसे तो नष्ट करना ही चाहिए। कोई भी देश हो,
उसको ऐसा ही कदम उठाना चाहिए जो भारत सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध उठाया है। आतंकवाद का समर्थन कोई देश नहीं करता है, और कोई करता है तो उसे नहीं करना चाहिए। पूरे विश्व में पाकिस्तान ही आतंकवाद के नाम से जाना जा रहा है। इसलिए इन पाकिस्तानियों को, वहाँ की सेना को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम किसी को मार करके, किसी की हत्या करके, किसी को छीन करके अपने देश में शांति पैदा नहीं कर सकते। हम सब मनुष्य हैं, मानव धर्म है, तो हमें क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान के साथ शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए। वो शांति कभी आतंकवाद का आश्रय लेने से प्राप्त नहीं हो सकती। आप अगर बलवान हैं तो आपसे बड़े भी महाबलवान हैं। आप पराक्रमी हैं तो महापराक्रमी भी देश हमारे इस धरती पर विद्यमान हैं, और उनमें भारत भी एक प्रथम पंक्ति में खड़ा हुआ है। इसलिए हमारी देश की प्रजा, हमारे देश का शासन, हमारे सेनाध्यक्ष, सबके लिए यह गौरव की बात है जो अदम्य साहस सेना ने दिखाया है। हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं।